क्वेश्चन देखो, स्टार्ट किए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखो। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इन अ फोटो इलेक्ट्रिक experiment increasing the intensity of incident light। ये भी जेई मेंस का है 2021 का पहला ए पार्ट। increases the number of photons incident and also increases the kinetic energy of the ejected electrons. B, increases the frequency of photons incident and increases the kinetic energy of the ejected electrons. C, increases the frequency of photons incident and the kinetic energy of the ejected electrons remains unchanged. D, increases the number of photons incident and the kinetic energy of the ejected electrons remains unchanged. इसलिए be fast, you just have 40 days left for the exam. Each and every single moment for you is important. Now you can't make the excuse of your Eid ul-Fitr. You don't have time. अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 ठीक है, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, वो भेज दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बोलो।
and be prepared for the test, upcoming test of full syllabus. I am telling you, be ready for that. If you're not prepared for the full syllabus test, then what are you going to do for the exam? If you see the history of the toppers, you see a pattern of the test that they have given, at least 50 mock tests of the top 1000 ranks. So you have to follow the same thing. If you want a rank under 1000, then you have to do the same thing. Same thing. At least 25 tests of full syllabus, so that you get practice of almost 5000 questions. At least कम से कम 5000 questions. It's very important. No test, your exam becomes the test. So be ready for that. This is your moment, I am telling you. This is the day that you have to prepare. Be ready for that. Each and every question can change the future. Who knows the cutoff? But everyone knows almost above 600 plus. Below that, dentist. And that is also a profession, but I don't think so that you will be happy with that. To get 600 plus, that means at least in bio you have to get 350 plus, 120, 130 in physics and chemistry minimum. Then you will get 600 plus. बताओ कौन सा है इसमें ऑप्शंस? Think and let me know the options which is correct. In a photoelectric experiment, increasing the intensity of incident light. हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इंसिडेंट लाइट का. फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो क्या क्या होगा? पहला, increases the number of photons incident and also increases the kinetic energy of the ejected electrons. हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी थी हमने उसको बढ़ा दिया है. तो पहला क्या ये चीज होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे. बोलो. दूसरा, increases the frequency of photons incident and increases the kinetic energy of the ejected electrons. ठीक है, इसमें देखो इंक्रीज हो जाएगा क्या? बोलो. इजेक्टेड, जो वहां से निकलते, जब हम मेटल सरफेस पे रेडिएशन किए, उस पे लाइट को गिराए तो उससे क्या निकलते? इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या ये बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? फिर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी. यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, यहां नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा है. नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब एन की बात कर रहा है, कैपिटल एन. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है. ठीक है, फोटॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स incident and the kinetic energy of the ejected electrons remains unchanged. This is not possible. तुम भाई यहां कुछ चेंज कर रहे हो, उसमें बोल रहा कुछ नहीं चेंज होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? लॉजिक सिंपल. अगर आप इंक्रीज कर तो बोल रहा है कि इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट and the kinetic energy of the ejected electrons remains unchanged. यहां फ्रीक्वेंसी जब हम लोग चेंज करते थे तो तुमने देखा था, एक पहला केस मैंने लिखाया था, अगर फ्रीक्वेंसी बदल रहा था तो कुछ तो हो रहा था. बोलो. स्टार्टिंग वाले केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या किए थे? फिक्स किए थे, या नंबर ऑफ फोटॉन्स को? पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए तो क्या हुआ था? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ था? नहीं हुआ था. लेकिन दूसरे वाले केस में फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग चेंज कर दिए थे तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गया था. समझ गए? तो ये तो नहीं हो सकता है. इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स
incident and the kinetic energy of the ejected electrons remains unchanged. अब देखो ये वाले में कुछ सेम दिख रहा है, बोलो। यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा है। इंक्रीज क्या होगा अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट का, इंसिडेंट लाइट जो उस पे हम लोग मेटल सरफेस पे गिरा रहे, अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे हम लोग, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। क्या बढ़ाने पे? इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा या फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स का बढ़ जाएगा? फोटॉन्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? फोटॉन्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड, देखो ये बाकी चीज तो यहां भी सेम है दोनों, समझ गए? तो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा? डी। डी, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इनसे एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या था? आई। इंटेंसिटी मतलब क्या था? पावर बाय एरिया। पावर बाय एरिया। यहां काइनेटिक एनर्जी है कुछ रिलेशन में? बोलो, है? नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जितने भी चीजें हैं ये थियरी वाली, आपको फॉर्मूला याद करना है और उसी से क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो सब लगेगा एक ही है। जो मैंने लिखाया था वो आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद 2021 का क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस जब करोगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आइडिया लगेगा। हेडिंग डालिए, बोर मॉडल एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। हेडिंग बोर मॉडल एंड, ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पढ़े कि नहीं? एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, हेडिंग डालो। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी तरीके से लिख ले रहे हैं। बोर साहब ने कुछ चीजें बताई, लिख लो। बोर इनकॉर्पोरेटेड the following new ideas now regarded as postulates of Bohr's theory. सबसे पहला, फर्स्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स, जल्दी जल्दी लिखना है। फोर्स रिक्वायर्ड for an encircling electron is provided by the electrostatic
attraction between the nucleus and the electron that is 1 by 4 pi epsilon naught ZeE by R square, which is equals to mv square by r. ये फर्स्ट जो आपको याद रखना है, ये वही है कूलम्स लॉ वाला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, बस यहां पर Z ही रह गए, न्यूक्लियस का है. ठीक है, Q1 लिख लो इसको फटाक से. पहला यहां पर इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, लिखो एब्सोल्यूट permittivity of free space which is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is velocity of electron, r is radius of the orbit in which electron is revolving. Z atomic number of hydrogen like atom. ये इलेक्ट्रॉन मान लो, यहां भी है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, बना लो. Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. लिख लिए, लिखो जल्दी फटाफट. ये पहला पॉस्टुलेट है किसका, बोर का. तुमको बस यही याद रखना है, K, ये देखो ये K है पूरा, क्या है ये K है, ये पूरा K है. K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई R. बस इतना याद रखना है, समझ गए. यहां पर Q1 के प्लेस पे ZE क्या है, सुमर बताओ Z क्या है. Q1 का जो चार्ज है, समझ गए, Q1 Q2 होता है ना, वही है. और दूसरा वाला E, इसके लिए इलेक्ट्रॉन वाला ये E हो गया. ठीक है, Q1 Q2 वो चार्ज है. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो देखो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन एनसर्कलिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। किसके बीच में? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो सिंपल सा ये घूमता रहेगा उसमें, समझ गए? ये वाला देखो पॉजिटिवली है, ये वैसा चार्ज नेगेटिव रहेगा, ये इसको खींचता रहेगा अपनी तरफ, और वो एन सर्किल घूमता रहेगा घूमता रहेगा। समझ गए? तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आ जाएगा, जो आपको याद रखना, ये काम की चीज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। K Q1 Q2 by R square which is equals to mv square by R, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। समझ गए? अब देखो यहां लिखा हुआ है मास क्या है, m क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, r रेडियस है ऑर्बिट का, कितना r है, कितनी दूरी पे है, ये r, ये ऑर्बिट हो जाएगा। समझ गए? बस लिख लिया, अब कर दूं जल्दी। 4 है पोस्टुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वाला ये है, इस सब में तुमको बस एक चीज याद रखना है, ये बस, और कुछ नहीं। लिख लिए? शायद केमिस्ट्री में भी किए होंगे, किए थे? नहीं, कोई बात नहीं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, electrons can revolve only in those orbits in which angular momentum of electron लिखो जल्दी फटाफट, about nucleus is an integral multiple of h by 2 pi, that is mvr equals nh by 2 pi। ये सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, mvr इक्वल टू nh by 2 pi, ये याद रखो, mvr इक्वल टू nh by 2 pi, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड पॉस्टुलेट है। यहां पर n इक्वल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of the orbit in which electron is revolving
लिख लिए। थर्ड, in state orbit, in state stable orbit, stable orbit मतलब specific orbit, total energy of electron remains constant. Its energy changes when it makes a transition from one orbit to another. टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा तो उसका एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉस्टुलेट ये है mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई, ये याद रखना है। सेकेंड पॉस्टुलेट, हो गया? बोलो, लिख लिए? तो सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? सिंपल है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h बाई 2 पाई। सिंपल, तुमको कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रखना है, mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई। दूसरा पॉस्टुलेट है किसका? बोर का। पहला वाला क्या था? 1/4 या सिंपल k ZE या सिंपल k ZE का स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R। ZEE है, स्क्वायर कर दो इसको, सिंपल। ये वाला क्या? mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई, दूसरा पॉस्टुलेट। तीसरा क्या कह रहा है? अगर स्टेबल है तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो उसका टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये दिमाग में रखो। लिख लिए सादिया? हाँ सादिया, लिखे? आप देखो इसके बाद
अब देखो नेक्स्ट, कितना 3 हो गया ना, फोर्थ लिखो जल्दी। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स in an atom, in an atom can revolve only in discrete circular orbits called stationary energy, stationary energy levels, energy levels, shells. An electron in a shell is characterized by a definite energy, definite energy, energy, angular momentum, angular momentum, and orbit number. While in any of these orbits, an electron does not radiate energy, radiate energy, although it is accelerated. नोट्स बनाओ, पहले नोट्स बनाओ, फिर बाद में जो करना रहे करना। नोट्स बनाओ अच्छे से। पाशा पढ़ाई कर रहे घर पे, फिजिक्स जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो अच्छे से। किसी को अगर फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे होते सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल सा रास्ता है, जो मैं लिखा रहा हूँ, जितना लिखा रहा हूँ उसको पी जाओ बस, सिंपल है ना। और जो चैप्टर कॉमन है ये तो सेम है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, बहुत सारी चीजें वो हो जाएगी। चलो इसके बाद देखो, लिख लिया इसको, हो गया, लिखो लिखो लो जल्दी, टाइम नहीं है। जल्दी करिए फटाफट।
लिख लिए। इसके बाद लिख लो फर्स्ट बॉक्स बना के लिख, बॉक्स पहला के जेड ई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको पहला ये, दूसरा एम वी आर एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम लोग। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है? वेलोसिटी, सिर्फ मुझे ये चाहिए, ये फॉर एग्जांपल। इसको रोक के बाकी चीज को दूसरी तरफ भेज दो, तो एन एच बाई कितना आ जाएगा? 2 पाई एम आर। ये चीज नीचे आ जाएगा यहाँ, समझ गए? अगर मुझे ये निकालना है तो ये नया फॉर्मूला बन जाए, जरूरत के हिसाब से तुमको यूज करना है। ठीक है, मान लो के जेड ई स्क्वायर लिख सकते, इसको ऊपर वाले को, बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या था? एम वी स्क्वायर बाई आर ना। देखो एम वी स्क्वायर, अब ये हमारे पास वी आ गया है, यही तो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये v की वैल्यू यहां रख सकते हैं, समझ रहे? ये v की वैल्यू यहां तो रख दो, v की वैल्यू पूरा। v क्या है? एन एच, अच्छा v का स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? स्क्वायर। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं नॉर्मल, पहले समझने के लिए। 2 पाई एम आर। ठीक है, m बाई नीचे क्या था? r था। तो सबसे पहली चीज देखो, ये r उड़ जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा इधर r। तो देखो k जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब m, अब इसका स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 2 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ गए? ये m से ये m चला गया, इधर एक m बचेगा। ठीक है, तो k जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। समझ गए? ये हमारे पास में बचा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे मान लो आर निकालना, सिर्फ ये चाहिए, या कुछ भी निकालना है जरूरत के हिसाब से हम निकाल सकते। फॉर एग्जांपल मुझे आर चाहिए, आर क्या करेंगे? ये पूरा टर्म नीचे, ये इधर और ये ऊपर, वो भी करके देख लो जो भी चाहिए तुमको। फॉर एग्जाम्पल ये इधर चला गया, तो के जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स आर। बस इधर उधर घुमा देना है तुमको, ये याद होना चाहिए। ये बाकी तुम बना सकते बहुत कुछ। और v ये होता है, ये वैल्यू उठा के तुमने यहां पर रख दिया, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर होता है यहां पर, ये यहां। बोलो, कुछ छूट रहा है? आर इसके बराबर ना,
और एक रिलेशन और तुमको लिखना है, ये वाला, ठीक है, लिख लो। V इक्वल टू एन एच बाई ये वाला 2πmr इक्वल्स एन एच एम 4π² E² k z बाई 2πm h² n²। ठीक है, काटेंगे पीटेंगे फिर, तो v इक्वल टू आ जाएगा h/2π 4π² E² k बाई h² z/n। और यहां पर v आएगा सॉल्व करने के बाद 2.18 इंटू 10⁶ z/n, ये याद रख लेना, मीटर पर सेकेंड। ये जब पूरा सॉल्व करेंगे ना, ये सब रखने के बाद, ये सब पूरा सॉल्व करने के बाद ये चीज आएगी। लिखिए, और एक चीज याद रखना है, यहां पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाई z, ये रिलेशन। बाकी सब कांस्टेंट है ना, तो यही बचेगा n² बाई z। लिख लो, सब कांस्टेंट। अगर यहां से देखो ये कैसा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाई z, कैसे आया, ये सब कांस्टेंट है, समझ गए। यहां पर R, ये R कट जाएगा, समझ गए। तो एक R इधर चला जाएगा, ये बाकी सब कांस्टेंट, ये सब जितना है कांस्टेंट, ठीक है। तो बचेगा बस वही n² बाई z, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे बोलेगा वो, याद रखना है। इसके बाद अभी देखो, हो गया, रब कर दूं। तुमको बस याद मेन चीज क्या रखना है पता है, ये वाली चीज, ये बस पहला स्टार्टिंग का 2 याद रख लिए, तुम सॉल्व कर सकते हैं। और ये याद रखना है 2.18 इंटू 10⁶ z/n, खत्म, मीटर पर सेकेंड, हो गया, ये याद रखना है। n² बाई z, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाई z। अच्छा, अब देखो, यही 2 चीज यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R n² बाई z। दूसरा चीज जो याद रखना है, वेलोसिटी का रिलेशन z/n, बस ये 2 चीज याद रखना है। एक वेलोसिटी में z/n
आर में एन बाई जेड, याद रखो सबसे पहला। तीसरा टी क्या होता है, 2 पाई आर बाई वी, लिख लो। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड। अब यहां देखो आर यूज कर रहे हैं, ये वाला एन स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई वी के प्लेस पे जेड बाई एन। अच्छा, ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। समझ गए ये, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन क्या आया जो याद रखना है, टी इज एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। इसके बाद फोर्थ फ्रीक्वेंसी वाला, ये टाइम पीरियड का था, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1 बाई टी, टी आपको मालूम है, उल्टा करना है इसका, 1 बाई टी कर दो, ठीक है, जो कि हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, इसका उल्टा, समझ गया ना, इसका उल्टा। तुम एक याद रखो, कोई भी टाइम पीरियड याद रख लियो तो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी याद कर लिए तो ऐसे याद रख, ऐसे याद रखो, एफ जेड आता ना, एफ जेड एस, एफ जेड, जेड आएगा साथ में, एफ जेड एस रहता ना, एफ जेड ये सब बाइक याद रख सकते हैं, एफ जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, फ्रीक्वेंसी याद हो गया, उसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड टी आ जाएगा। एक याद रखो, एफ जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, समझ गए, एफ फ्रीक्वेंसी है। रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता है टी क्या होता है, ठीक है, 2 पाई आर बाई वी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद अगला एंगुलर वेलोसिटी, देखो क्या है, फिफ्थ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये भी याद रखना है, ये याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। अब तुमको v बाई आर क्या रखेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख दो 2 पाई बाई टी। तुमको टी पता है, तुमको क्या पता है, टी पता है, टी कितना है, एन क्यूब बाई जेड, तो यहां पर रख दो, समझ गए। v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ते थे रोटेशन में, v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ते थे, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर हमें पता है, और ये ओमेगा 2 पाई बाई टी भी होता है, और यहां पर v क्या होता है, हमेशा याद रखना, v जेड बाई एन, आर एन स्क्वायर बाई जेड, याद रखने वाली चीज है बहुत सारा, नहीं तो सब उल्टा पल्टा हो जाएगा, समझ गए। इसके लिए बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि एन स्क्वायर कहाँ आएगा, एन किधर आएगा, जेड किधर आएगा, कंफ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे ओमेगा को, तो आएगा जेड बाई एन, जेड बाई एन क्यों रखे, यहां से v के प्लेस पे, इसके प्लेस पे, r के प्लेस पे ये रखेंगे, इसके प्लेस पे, तो रख दो, आ जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर बाई एन, एन कैंसिल हो जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं चीज को उठा के रख रहे हैं उसके अंदर, जहां पर आर क्या है, रेडियस है ऑर्बिट का, सिंपल एन स्क्वायर बाई जेड,
आर एन स्क्वायर बाई जेड, वी क्या है, जेड बाई एन, वी क्या है, जेड बाई एन, और यहां पर आर की जब बात करेंगे तो एन स्क्वायर बाई जेड, ये याद रखना है। वेलोसिटी याद रखो, जेड बाई एन, वेलोसिटी क्या रखना है, जेन रखना है, क्या रखना है, जेन, समझ गए। स्पीड अपना वेलोसिटी रखना है जिन की तरह, जिन, समझ गए, जिन, फटाक से, समझ गया ना, बस लिख लो इसको फटाक से जल्दी। और उसके बाद में याद रखो तुम एफ जेड, याद रखो, तो आएगा एफ जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ये चीज भी याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। साथिया लिख लिए, ये सब याद रखना, अभी ये सब यूज होगा क्वेश्चंस में, फॉर्मूला। लिख लिए, बोलो, लिख लिए, लिख लिए, अगले क्वेश्चन पे चलें। जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ओमेगा अगर पूछेगा तो ये लगाएंगे, समझ गए ना, ओमेगा अगर पूछ लिया उसने, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछेगा तो ये लगाएंगे। अभी देखो इसके बाद, ओमेगा के बाद मान लो उसने पूछ लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिक्स्थ पार्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या एसी अगर पूछता है तो हम लोग पढ़ते थे वी स्क्वायर बाई आर होता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था, वी स्क्वायर बाई आर, बस कुछ नहीं करना है। वी क्या है, वी अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वेलोसिटी, जिन, जिन बताया ना मैंने, जिन होना चाहिए, तो जेड बताओ, जेड बाई एन, यही वी है, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये वी का स्क्वायर ना, बाई आर, यस और नो, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सिंपल, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा ना, नहीं जाएगा, या नीचे ही रहेगा, बोलो, सिंपल तुमको याद रखना है, वेलोसिटी अगर आ गया जेड बाई एन आएगा, वेलोसिटी आ गया तो जेड बाई एन आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, बस यहां पर आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये नीचे जो आर था ये ऊपर चला गया, तो आर जेड स्क्वायर ऐसे लिख सकते। अब देखो इसके बाद, और आर के प्लेस पे रुक जाओ, इसको इधर ही नीचे ही रहने दो, बोलो
अच्छा, आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, रेडियस के प्लेस पे लिख दो एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखो इसको, अब सॉल्व करना है इसको, अब इसको सॉल्व करना है, काटना है पीटना है, तो कितना आएगा वो मुझे बताओ। क्या सिंपल ये आएगा, ए सी जेड क्यूब बाई एन पे पावर 4, ये आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुमको कुछ नहीं करना है, बस v अगर आ गया क्या रख दो, z बाई एन। r आ गया तो एन स्क्वायर बाई जेड। यही चीज है जो बार बार इस्तेमाल होगा, जो याद रखना है तुमको, अलग अलग जगह पे जहां भी तुमको दिखा ये उठा के रख। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, वी के प्लेस पे रख दो जेड बाई एन का स्क्वायर, आर के प्लेस पे रख दो एन स्क्वायर बाई जेड, काटो पीटो आंसर। कैसे, अब ये इसको जब रखोगे, इसको अच्छे से रखेंगे, अगर कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसको पलट दोगे तो ऊपर जेड जाएगा, नीचे ये आएगा, ये लो, तो जेड क्यूब बाई एन पे पावर 4, यही चीज तो आ गया। तो रोटेशन के सब सवाल यहां पर आ जाएंगे, घुमा फिरा के। चलो ठीक है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है सेंट्रीपिटल वाला तो ऐसे निकल जाएगा। सेवेंथ पार्ट इसका, उसने बोला बताओ मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। अब V उठा के रखना इधर, एम वी। एम वी कितना है, Z बाई एन, Z बाई एन, तो बस सिंपल यही लिख दो, एम जेड बाई एन। V के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, Z बाई एन। सिंपल, डायरेक्टली ये आ जाएगा। अगर उसने पूछ लिया किसी सवाल में मोमेंटम नहीं, काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी के प्लेस पे क्या रख दो, Z का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, क्योंकि एम वी का स्क्वायर होता है, तो Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। V आ गया Z बाई एन, R आ गया एन स्क्वायर बाई जेड। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सिंपल, अब पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा यहां पर mgh नहीं लगेगा, mgh नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा, ये वाला लगाओ, सिंपल k z e बाई r, ये रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, इसमें माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि वो अंदर की तरफ खींच रहा है ना। देखोगे तो सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर, डायरेक्शन, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, तो उसकी वजह से माइनस। समझ गए। अच्छा देखो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई R, प्रोपोर्शनल टू Z बाई एन स्क्वायर बाई Z, ये R के प्लेस पे रख रहा है इसको, R के प्लेस, समझ गए। फिर इसके बाद Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, फाइनली ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला इधर Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। बाकी जो कांस्टेंट उसको हटा दिए, समझ गए, के कांस्टेंट उसकी जरूरत नहीं,
न्यूक्लियस कहीं भागा नहीं रहा है, उधर ही रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो उसको Z लिख दो बाई R। इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा है कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर R के प्लेस पे ये लिख दिए, ये Z ऊपर गया, Z² बाई n², ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद अगर उसने पूछ लिया, मान लो कह रहा है तुम बताओ ऑर्बिटल करंट, 10th पार्ट, करंट बताओ, ऑर्बिटल करंट। तो Q बाई I इक्वल टू Q बाई T लिखो। अब तुमको T पता है, T समझ गए, यहां पर T पता है ना, T कितना है, लिखिए इससे पहले हम लोग T के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं वो लिख दो। इसको लिख सकते हो 1 बाई T, और T को लिख सकते हैं हम लोग सिंपल Z² बाई n³। लिख लिए, ये याद रखना है, VZN RN²Z, VZN, ठीक है, RN² बाई Z, ये याद रखना है। जैसे वो रहता ना RNA, ऐसे याद रखो, RNA वाला और VZN, V जिन, समझ गए, V जिन याद रखो और RN²Z, ठीक है। तो ऐसे याद रखो ना, सिंपल सा तरीका है। विजन, कुछ लोग बोलते हैं ना विजन नहीं बोल सकते तो विजन बोलते हैं, विजन समझ गए, तो विजन याद रखो और RNA याद रखो, बस RNA, तो Z तो नीचे आ ही खत्म। ये सब रिजल्ट आप लोग को आराम से याद करना बैठ के। ये सब एक एक जो मैं करा रहा हूँ ना, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, ये सब एक में मैं करा रहा हूँ। ये जितने पार्ट है उतने सारे क्वेश्चन है, जिसके क्वेश्चन होंगे एक एक पेज के, समझ गया ना। तो देख के डरना नहीं, इसको देख के डर जाते बहुत सारे लोग, ठीक है। जैसे अगर उसने पूछ लिया, कौन सा पार्ट रहेगा ये, 11th ना, 11th पार्ट, चलो बताओ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। डी सेंटर पे क्या होता है फॉर्मूला, सादिया, शिफा और वो लोग कहां हैं, सो गए, क्या करे घर पे, माशाल्लाह, चलो ठीक है। फॉर्मूला बताओ सुमर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। व्हाट इज द फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 4R या 2R, बोलो। लोग बोलते फॉर्मूला शीट की जरूरत क्या है, हमारा दिमाग ही फॉर्मूला शीट। कुछ लोग सोचते हैं सब फालतू टाइम वेस्ट होगा लिखेंगे तो। कुछ लोग इतने स्मार्ट हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं बैठ के लिखूंगा एक एक चीज फॉर्मूले में, वो टाइम वेस्ट।
टाइम बचना चाहिए। उनके पास रील्स देखने के लिए टाइम है। बोलो, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, देखो इधर भी आर आ गया ना, तो आर को पार ही कर दो, आर को पार कर दो। आर के प्लेस पे क्या लिखना है, लिख दो, खत्म। देखो यहां पर ये सब कांस्टेंट है, समझ गए, सिंपल लिखो इसको। तो बी ऐसे लिख सकते आई बाई आर, आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बस लिख दो, खत्म। इसके प्लेस पे एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अच्छा, आई के प्लेस पे लिख दो, आई के प्लेस पे जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। क्यों, क्योंकि आई हम लोग निकाले थे ना ऑर्बिटल करंट का, आई की वैल्यू यहां रख देंगे, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा जेड क्यूब बाई एन पे पावर 5, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। समझ गए, सिंपल, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें और ये इसमें, ठीक है। 2z 1 3 हो गया, 3 और 2 5, खत्म। समझ गए, इस तरीके से इसको करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ हाँ, मैं क्लासेस में हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, बैठ जाए 2 मिनट, मैं लेक्चर आता हूँ। समझ गए, कुछ नहीं करना है, जेड क्यूब एन पे पावर 5, खत्म। तुमको 2-3 चीज याद रखना है। कितनी चीज, आर के प्लेस पे क्या लिखना है, ट्रिपल आर, आर आर आर, कुछ लोगों को वही याद है, ट्रिपल आर नहीं, यहां पर एक अगर आर आया तो एन स्क्वायर आएगा, एन एन, समझ गए, एन एन बाई जेड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर उसने पूछ लिया मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, शातिर आदमी है, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, ऐसे कुछ लोग होते हैं। 12th, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मतलब m इक्वल टू आई, रुक जाओ, इसका फॉर्मूला बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का। इकरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, टेल। इकरा, डॉक्टर तुम बोल रहे, बोलो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, इतना प्यारा इसका फॉर्मूला, आइए क्या है, आइए आइए समझ गए इसको ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट को प्यार से बुलाना है, नाम भी देखो मैग्नेटिक मोमेंट, नॉर्मल मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट। नाम याद हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आई ए, खत्म, याद रखो ऐसे ही, आई ए। बस तुमको आई पता है, ए क्या है, एरिया है। देखो एक एक चीज तुम खुद से फॉर्मूला क्रिएट करो, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बी रेडी फॉर दैट। आई इज वेरी सिंपल, आई हमने क्या रखा, रखो सॉल्व करके मुझे बताओ, बस हो गया, मैंने सॉल्व कर, बोलो। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, आइए आई के प्लेस पे क्या रखेंगे, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, लिखो जल्दी फटाफट,
और कुछ नहीं करना है, समझ गए? देखो ये आई क्या है, मुझे बताओ आई क्या है। इधर देखो आई के प्लेस पे हमने जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब लिख दिया। ए एरिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई वाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, आर से मतलब है। तुम ढूंढो किधर आर है, किधर वी है, किधर आई है, ढूंढ ढूंढ के क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहां पर रखेंगे किसकी वैल्यू, यहां पर एरिया रहता तो हम लोग लिखते पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। आर के प्लेस पे क्या लिखना है, आर, मैंने बोला था ना आर, आर एन ए, एन स्क्वायर बाई जेड। ये तो नॉर्मल उसका फॉर्मूला एन स्क्वायर बाई जेड, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा और एन पे पावर 4 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहां पर एन क्यूब, यहां पर कितना है बोलो, समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। ये जेड स्क्वायर खत्म, एन क्यूब खत्म, तो बचेगा क्या, एन। यस और नो बोलो, सिंपल। यहां पर क्या आ गया, सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, खत्म, एवरीथिंग एल्स कैंसिल, बाकी चीजें कट गई। चलो फिर थोड़ा सा दिमाग उसने और लगाया, बोला यही नहीं हमें और कुछ चीजें बताओ। एंगुलर मोमेंटम 13th पार्ट, एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला बताओ, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी। जल्दी से सॉल्व करिए। मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया, ये वाला एंगुलर मोमेंटम।
कितना है, बंद कर दिए क्यों? क्या आया पाशा? एम एन। अच्छा, नहीं नहीं, फॉर्मूला पहले बताओ एंगुलर मोमेंटम का। एम वी आर क्या आएगा? एम वी आर। अच्छा, एक चीज और बताओ, बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था? एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 4 पाई 2 पाई रहेगा। 4 पाई नहीं 2 पाई, समझेगी नहीं? इसको लिखो एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ठीक है? एन आ रहा है सब सॉल्व करने के बाद, एम आ रहा है, एम एन आ रहा है। अच्छा, ऐसे लिखो, याद रखो इस चीज को, L इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है? एम वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो L वी आर जेड बाई एन, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है? काटेंगे, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये कट जाएगा ना, तो सिर्फ n बचेगा, n। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा, m भी आएगा ना कि नहीं आएगा? इधर r की प्लेस पे हम लोग ये रख दिया ना, एंगुलर मोमेंटम तुमको निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो फटाक से।
एक और चीज लिखो एनर्जी वाला, ये लिख लिए, इसके बाद लिखो एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी वाला, एनर्जी सबसे पहला के जेड ई ई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, वी के प्लेस पे लिख दो, ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग तो के जेड ई इलेक्ट्रॉन माइनस ई बाई आर इक्वल्स माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दो, काइनेटिक और ये दोनों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी लिख लो। देखो इधर सिंपल, यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, बोलो के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी देखो सेम है। निशान संभाल के बंद करो, ये देखो सेम है दोनों, एग्जाम का असर है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस, और यहां पर 2r नहीं है, सिर्फ एक r, बाकी सब कुछ सेम है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, सब कुछ। पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आ जाएगा और 2r की जगह पे r आ जाएगा, और इधर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम ही है, डिफरेंस माइनस। ये माइनस किससे आया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, समझ गए। इसको जोड़ेंगे, ये आ जाए टोटल एनर्जी बस। हाँ अस्सलाम वालेकुम, हेलो, मैं लेक्चर में हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। बोलो, लिख लिए, याद रखना है कैसे मैं बोल रहा हूं, सिंपल। यहां पर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सेम है, दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक चीज का डिफरेंस माइनस साइन का बस। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यही है, माइनस आएगा, 2r नहीं आएगा, एक r आएगा। ये सब कैसे याद रखना है, इसी पे क्वेश्चंस होंगे। टोटल एनर्जी पूछेगा क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है। पोटेंशियल आ गया, माइनस आ गया, समझ गए। पोटेंशियल में r एक रहेगा, काइनेटिक में टोटल सेम रहेगा, सब कुछ। मैग्नीट्यूड लिखा देता हूं ना, इसके बाद सीधा याद रखो उसको, ये याद रखो बस, ये डब्बा। काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, इसका आधा है, बस हो गया। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर साइन हटा दो ये भी सेम, ये भी सेम,
ये दोनों बराबर है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका आधा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका आधा का मतलब क्या, ये 2 है ना, तो उसका आधा हो गया, समझ गए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, खत्म। अब इसके बाद प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर। टोटल एनर्जी इसका लिखना है, लिखेंगे कैसे, -1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ये टोटल एनर्जी, हम इसका ऐसे लिखेंगे टोटल एनर्जी। और यहां पर r की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, याद रखो r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, r इक्वल टू। और टोटल एनर्जी, ये सब सॉल्व करने के बाद क्या आता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी जब सॉल्व करेंगे ये सब अटरम खटरम, तो ये आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आफ्टर सॉल्विंग ये सब कुछ वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, पाई की, जेड की, सबकी रखेंगे, ये आएगा सॉल्व करने के बाद -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं लेक्चर में हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। नहीं नहीं, ठीक, बच्चे लोग अभी आएंगे, बाद में आएंगे ना, उन लोग को बताना भी पड़ेगा ना, टाइम भेजना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ ठीक है, बच्चों को पहले बताना पड़ेगा ना, अभी थोड़ी डायरेक्ट बोल सकते। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, चलिए, चलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, हो गया, बोलो। तो सिंपल याद रखो ये डब्बा, दिस डब्बा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फॉरगेट दिस डब्बा, यू शुड फॉरगेट योर डब्बा, समझ गए, डब्बा ऑफ डिनर। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। टोटल एनर्जी में माइनस आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आएगा, काइनेटिक में माइनस नहीं आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी आधा है। अब इसके बाद देखिए, ये भी लिखिए, स्पीड में लिखिए जल्दी। हो गया,
देखिए हेडिंग डालो, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ऊपर जैसे जाएंगे हम लोग, ये जो दूरी है ना कम होता चला जाएगा। दूरी कम होता चला जाएगा। मान लो ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 और ऐसे रहेगा n इंफिनिटी तक। और यहां पर साइड में लिख लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर है टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का आधा, और टोटल एनर्जी 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये भी याद रखो, इसी पे काम होगा सब। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग रखें n इक्वल टू 2 और z टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6, ठीक है, z स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर बाई z कितना लिख दो 2 का स्क्वायर, n इक्वल टू 2, इसी तरीके से n इक्वल टू 3 पे निकाल सकते से। और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखेंगे। किसके लिए? फॉर z इक्वल टू 1 के लिए है। किसके लिए? फॉर z इक्वल टू 1 के लिए। तो ऐसे फिर और भी सॉल्व कर सकते हैं। जब n इक्वल टू 2 है, 3 है, ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कुछ है जो आप लोग को याद ही रखना है, सीधा उसको बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, सीधा याद रखना है डायरेक्टली। ये रहेगा हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E21। फिर इसके बाद अगर मान लो यहां से आ रहा है इसका है 12.09 डेल्टा 31, इसका है 12.75 E41। टोटल एनर्जी इसका निकालेंगे अगर पहले वाले का, आएगा -13.6 आएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना है अगर, क्योंकि 1 1 रखेंगे ना तो उतना ही आएगा। अगर ये वाले फॉर्मूले में पहले वाले में तुमने n की वैल्यू यहां कितना रखा 1, z की वैल्यू कितना रखा 1, तो यही आ जाएगा ना। बोलो, तो ये टोटल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, साइन वाइज चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, बस सेम 13.6। पोटेंशियल एनर्जी अगर रहेगा तो उसका आधा, इसका आधा कर देंगे सिंपल,
-27/27.2, ये इधर जाएगा ना, इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू। ऐसे ही ये जो चीज हमने लिखा है, यही चीज इसका इसका कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां इसको मान लो सेकंड वाले का सॉल्व करेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका -1.51। एनसीईआरटी में भी रहेगा, इसको सीधा याद ही रख लेना, डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इन लोग, बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा याद रखना कि इसका इतना रहेगा। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इंफिनिटी पे और अगर किसी को डाउट होता है कि ये सब कहां से आया, सिंपल, कुछ नहीं करना है, n=3 है ना, तो यहां पर ये वाले फॉर्मूले में उठा के रख के सॉल्व करना, यही आएगा, समझ गया ना। तो तुमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखो। इन केस तुम भूल जाते हो वैल्यू, कुछ नहीं करना है, n=3 पे चाहिए, कितना है इसमें रख दो वैल्यू, n के प्लेस पे कितना रखोगे, 3 का स्क्वायर, z के प्लेस पे 1, बस ये -13.6 डिवाइडेड बाई 9 कर दो, जो आएगा उतना वो आंसर आ जाए, खत्म, डायरेक्टली कर सकते हैं। लिख लिए, रब कर दूं, बनाओ इसको जल्दी फटाफट। हो गया, बोलो, रब कर दूं। अब देखो इसके बाद अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि पहले वाले को क्या बोलते हैं, है ना, लेमन बामन जो भी रहेगा पूरा पढ़ेंगे, अलग तरीके से याद रखें, परेशान मत हो। सब कुछ एक ही डायग्राम में नहीं बनाना है। अब इसके कुछ डेफिनेशंस है जो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको लिख लेना है बढ़िया से। अभी देखो है क्या, कुछ डेफिनेशंस लिख लो इसको फटाक से। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन in lower energy state, energy state absorb a photon of energy equal to energy difference between two state to get excited to higher energy state. Next, when an electron make transition from a higher
from a higher energy level to lower lower energy level. It emits a photon with energy equal to the energy energy difference difference between between initial initial and final levels final levels ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो, इस सब काम आएगा अच्छे से, इसके बिना नहीं होगा कुछ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थियरी कॉन्सेप्ट है, सब लिखो अच्छे से फटाफट। लिख लिए? हो गया? बोलो, लिख लो इसको अच्छे से। लिख लिए? रीड करो एक बार, देखो। हेलो, हाँ अस्सलाम, बोल दिया हूँ बच्चों को, ठीक है? 5 बजे से बोला हूँ। नहीं नहीं, 5 बजे से भी बोला हूँ, आप आ जाओ। हाँ 5:30, हाँ हाँ 5:30 तक आपको दिक्कत नहीं। ठीक, अस्सलाम। इतना लिख लिए? रब कर दूं सादिया? ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट। जो थियोरेटिकल चीजें हैं इसको पढ़ के समझना है क्या बोल रहा है। हेलो, हेलो बोलिए ना।
मैं लेक्चर में हूं, बोलिए ना। हेलो यार, लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लिख लिए ना? अब इसके बाद चलो, लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे? सादिया बोलो। फाइनल लेवल्स, ठीक है। अगला, इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कैन absorb only those photon which have energies equal to the difference in energies of the stable energy level with ground state. Next, energy required to ionize an atom is called ionization energy of atom. For that particular energy level tends to infinity, तो E infinity minus En which is equals to 0 minus 13.6 Z square by N square. इन्फिनिटी की वजह से 0 और ये n की वजह से ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कितना एनर्जी की जरूरत है एक एटम को उसको आयनाइज करने के लिए, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक चीज और है इसमें काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो सिंपल, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली दोज फोटोन। वो ज्यादा वाला भी नहीं लेगा, कम वाला भी नहीं लेगा, बोलेगा जितना मैं हूं मुझे उतना ही जरूरत, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ वो फोटोन को जिसकी एनर्जी उसके बराबर होगी। एनर्जीज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ द स्टेबल एनर्जी लेवल विथ ग्राउंड स्टेट। और किसी से वो ज्यादा भी रहेगा तो भी नहीं, कम रहेगा तो भी नहीं, उसको उतना ही चाहिए। जैसे तुम गए, तुम्हारा अपना एक फिलॉसफी है, सिद्धांत मान लो,
अब बस आपने बोला कि मुझे जो है चप्पल खरीदना है, 1000 रुपये चाहिए, और तुमको 500 रुपये देने लगे, बोले नहीं, फिर ज़्यादा खुश हो गए, अब 1500, बोले नहीं मुझे 1000 ही चाहिए। ज़्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, जितना मांगा उतना चलेगा। समझ गए? वैसा लिख लो फटाफट। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ अ फोटोन, लिखो, ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, फोटोन रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, एक्साइट इलेक्ट्रॉन from n इनिशियल से n फाइनल, n इनिशियल मान लो n1 से n फाइनल मान लो दूसरे पे, एक से दूसरे पे पहुंचाना है, पहले से दूसरे लेवल पे पहुंचाना है। विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू, इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा E इक्वल्स 13.6 z स्क्वायर, n छोटा का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, ऐसे आता हूं, hc बाई लैम्डा। और hc की वैल्यू हमें पता है, hc की वैल्यू क्या है हमें पता है, कितना, 12400 बाई लैम्डा। ये किसमें, बोलो, नैनोमीटर में लिख लो, इन नैनोमीटर 1240। ये क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल है, समझ गए? छोटा स्क्वायर मतलब छोटा माइनस बड़ा, ऐसा कर दो, ठीक है? यहां पर जो रहेगा सिंपल। इसके बाद